Hey, good morning students. I hope you all are fit and fine in your home and doing well. So, before I start my session, first of all, I wish you all a happy Kargil Divas, ठीक है? Because today is 26th of July, so this is celebrated all over the India as a Vijay Divas, है ना? Kargil Divas, okay? So I congratulate to you all of you, and let's start the new chapter which is complex number, okay? So actually I have been started with trigonometry function, but later on CBSE has given a circular regarding the partition of syllabus. Then now the syllabus is the first term syllabus included complex number after relation and function and set theory. The third chapter what we have to learn is complex number, because the trigonometry function is going to the second half, or you can say the second term of the examination. That's why I have to start the complex number. So today we will discuss I will discuss the basic knowledge of complex number. What is the basic need of complex number? So what is the topic to be covered out throughout this video lecture? The very first is need of complex number, okay, need of complex number. The second one is a complex number. What is complex number? The third one is addition, or you can simply say algebra of complex number. Next, iota, and then we'll discuss about modulus and conjugate of a complex number, okay? I hope you are getting my points. So these are the topic which we have to cover throughout this video session, video lecture. The very first, what is the need of the complex number, then we'll discuss about what is the complex number, then we'll discuss about the algebra of complex number, and afterward we will discuss about the iota, the power of I, and then we'll discuss about the modulus and the conjugate of the complex number, okay? So let's begin the video. One by one we'll discuss all these things. So the very fundamental question arises in our mind is, before starting to read or learn complex number, what is the need of complex number actually? So dear student, in our day-to-day life we have discussed with the problems like roots, है ना, roots of some quadratic equation. Suppose we have a quadratic equation like that, x square minus 1 is equal to 0, and I am telling you what is the root of this quadratic equation. So you simply equate this x square with 1 and will find like x is equal to root of 1, okay, that is plus minus 1. You simply can say that, sir, the root of this quadratic equation is plus 1 and minus 1, because both the numbers are satisfying this condition, satisfying this quadratic equation, ठीक? So and 1 and minus 1 of course both are real numbers. But what about if we have a quadratic equation of the type this, a quadratic equation of the type x square minus 2x plus 3 is equal to 0, है ना, a quadratic equation of the type this. I mean to say a quadratic equation in which the discriminant d is less than 0, in which the discriminant d is less than 0, or in other words we can say b square minus 4ac is less than 0, then we know that on behalf of discriminant we can easily find the nature of root. So if your discriminant is less than 0, then what will be the nature of root? Roots are not real. So if roots are not real, then what kind of root we are getting here? We are getting here imaginary roots, okay? We are getting here imaginary roots, ठीक है? In 10th standard, in the chapter quadratic equation you have learned nature of root. Then we'll discuss, must discuss about this property that if the discriminant is less than 0, then the roots are not real, no real root exists there, ठीक है? तो रूट अगर रियल एग्जिस्ट नहीं हो रहे तो कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट होंगे. तो एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड जरूरी हुई वो एक्चुअली हुई इसीलिए क्योंकि जब हमें इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने लग गए जिनका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जिनका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए, तो वहाँ पे रियल रूट्स की बात नहीं की जा सकती, रियल सॉल्यूशन की बात नहीं की जा सकती. तो वहाँ पे कैसा सॉल्यूशन आपको मिलने जा रहा है? तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी सॉल्यूशन, इमेजिनरी रूट्स.
तो जो नीड है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वो इसीलिए यहाँ पे आई। ठीक, तो अब देखिए इसका रूट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज 0 इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 एंड फ्रॉम हियर वी कैन गेट एक्स इज रूट ऑफ -2। नाउ सी, if you are getting any negative number within the square root, if you are getting any negative number within the square root, it means that you are getting an imaginary number. So now I can write it like root 2 into root of -1. So this will be root 2 into root 2, ठीक है, this is root 2 into root of -1 is iota, ठीक है, ये आयोटा की वैल्यू होती है रूट ऑफ -1। सो तुम्हारे जो रूट्स निकल के आए वो क्या है, प्लस माइनस रूट 2i। इट मीन्स दैट दिस इक्वेशन हैज रूट्स, रूट्स तो हैं इसके, बट द रूट्स आर नॉट रियल, द रूट्स आर इमेजिनरी एंड द रूट्स आर प्लस रूट 2i एंड माइनस रूट 2i। सो दैट इज माई पॉइंट, व्हाट इज द नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? एक्चुअली द नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हेन द रियल नंबर्स आर फेल टू डिफाइन एनी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को डिफाइन करना इन केस ऑफ रियल नंबर के लिए डिफाइन करना पॉसिबल नहीं हो पाया, तब वहाँ पे एक अलग किस्म के नंबर्स की जो है हाइपोथेसिस या फिर ये समझ लीजिए कि उसकी बात रखी गई, और वो जो डिफरेंट काइंड का नंबर्स था उसको हमने नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। एक्चुअली अगर मैं आपको बता दूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली डिनोटेड बाय जेड एंड इट इज़ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ r प्लस IR, where r is denoting the real number, where r is denoting the real number. So what is complex number? Actually complex number need तो आपको समझ में आ गया ना, what is the need of complex number? When we are unable to find the root of any quadratic equation in the form of real numbers, ठीक है, real number के फॉर्म में आपको रूट ना मिल पा रहे हो, then in such case we are getting in another number which is known as the imaginary number, and the discussion of इमेजिन नंबर का जो भी डिस्कशन है वो मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में होती है, दैट पर्टिकुलर ब्रांच इज नीड टू बी सेट टू बी एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो बेसिकली व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? इट इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ठीक, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? बेसिकली a complex number is denoted by capital Z. Okay, if you are talking about notation, ठीक है, तो नोटेशन किस क्या होगा इसको, वी आर डिनोटेड बाय कैपिटल Z. ओके, कैपिटल Z इज द सिंबल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज रिटन एज r प्लस IR. ठीक है, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका जो रियल नंबर वो कैसा है। इफ द रियल नंबर इज नेगेटिव तो अल्टीमेटली यहाँ माइनस आएगा ही आएगा। एंड दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट. This is called imaginary part. Okay, this is real because iota is not there and this is imaginary because of the iota. ठीक है, so कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलके बनता है बच्चों. द वेरी फर्स्ट इज रियल एंड द सेकेंड वन इज इमेजिनरी. रियल पार्ट which does not consist of iota and imaginary part is the part which consists of iota. ठीक है, क्लियर हो गया चीज. नाउ आई एम टेकिंग सब एग्जांपल्स. ठीक है, सपोज z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई, है ना, 2 प्लस 3i. ठीक है, उसके बाद और ले लेते हैं. ठीक है, x प्लस आई वाई, where x and y both are real numbers. ठीक है, z is equal to 0 plus i. ठीक है, तो इस तरीके से we can take infinitely many complex number. But what is the common point in all these complex number? The common point is the first bar is always denoting the real part. ठीक है, जो पहला वाला पोर्शन होगा वो रियल पार्ट को इंडिकेट करेगा एंड द पार्ट विच इज कंसिस्ट ऑफ आयोटा, जो आयोटा को कंसिस्ट करेगा वो वाला पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाया जाएगा. बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. इट इज द एडिशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर आप मर्ज कर दें तो जो आपको एक फिगर मिलेगा, जो आपको एक नंबर मिलेगा, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. आ रही बात समझ में? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, इस तरीके से इसको हम समझेंगे. अब बात आती है, अगर हमने वहाँ पे रियल नंबर्स की जब बात की थी तो रियल नंबर्स को भी हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर. तो ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लेन होता है. ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड आर्गेंट प्लेन. आर्गेंट प्लेन या फिर इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन. ठीक है, आर्गेंट प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन, अ प्लेन इन विच
a plane in which we represent the complex number, we plot the graph of complex number, such kind of plane is known to be as a Argand plane, or you can also say is complex number. तो बिल्कुल वैसी जैसे x और y एक्सिस होते हैं, ठीक वैसे यहाँ पे भी होता है. दिस इज x एक्सिस and this is y axis. Okay, now see the x axis is said to be real axis. The real part of complex number, you will show it, you will represent it on the x axis, and the y axis is said to be imaginary axis. ओके बच्चों, जो आपका x एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करेगा रियल एक्सिस को और रियल पार्ट को, ठीक है ना, रियल एक्सिस या रियल पार्ट व्हाटएवर यू कैन से, एंड द y एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द इमेजिनरी पार्ट. सपोज आई हैव अ पॉइंट z is equal to -2 plus 3i and I have to plot this point on the Cartesian, not Cartesian, on the complex plane. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नाउ सी द रियल पार्ट. रियल पार्ट कितना है इसका? रियल पार्ट इज -2. रियल पार्ट इज -2 एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट बच्चों? इमेजिनरी पार्ट इज ऑफ कोर्स a part which consists of iota is known to be imaginary part, so imaginary part is 3. So the your required point is -2,3 है ना. रियल पार्ट को पहले लिखेंगे क्योंकि रियल पार्ट पहले आता है, इमेजिनरी को बाद में, तो इमेजिनरी बाद में. तो -2,3 इज योर पॉइंट. नाउ यू कैन इजीली प्लॉट इट ऑन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन. ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको आसानी से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, सिंस एज यू नो -2 is the real part, so it will indicated, it will you know represented in the x axis. So -2 कहाँ जाएगा भाई? Now 3 is imaginary part, तो imaginary part कहाँ पे डिनोट करेंगे? y axis पे. So +3 1 2 3. So your required point is, what is your required point? तुम्हारा required point कौन सा हो जाएगा भाई? This is, है ना, यहाँ कहीं पे पॉइंट बनेगा आपका, ठीक. तो दिस इज यूर रिक्वायर्ड -2,3. ये पॉइंट आपका हो जाएगा -2,3. तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो प्लेन होगा जहां पे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, दैट पर्टिकुलर प्लेन इज नोन टू बी आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन. विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है, मोर लेटर. ठीक है, सो राइट नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो डियर स्टूडेंट, आपने जब फंक्शन पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्कसिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर. सो अगेन आई एम टेलिंग यू अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो बेसिकली व्हेनेवर आई विल व्हेनेवर आई थिंक अबाउट अलजेब्रा, देन 4 ऑपरेशंस आर कम्स इन अवर माइंड: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. बट बिसाइड्स ऑल दीज 4 ऑपरेशंस कुछ और प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, तो डिस्कस करेंगे हर एक के केस में. तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सो अलजेब्रा के अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं फॉर एडिशन. ठीक है ना, फॉर एडिशन. बेसिकली अलजेब्रा में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये चीज़ें तो आती है ना, 4 ऑपरेशन, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज की. एडिशन के केस में द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर. सो व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी? द क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट दैट इफ यू आर हैविंग एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2, if you are having any 2 complex number Z1 and Z2, and if you are adding both of them like that, Z1 plus Z2, ठीक है, and the resultant also belongs in the complex number Z. ठीक है, मतलब कहने का अगर हमारे पास कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों और हम उनको ऐड करें तो जो रिजल्ट आपका है, जो रिजल्टेंट आपका है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, देन दिस प्रॉपर्टी इज नोन टू बी क्लोजर प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 is equal to 1 plus I, okay, and Z2 is equal to 2 minus I. Suppose randomly we have chosen any 2 complex number. Now see Z1 plus Z2. So 1 plus I plus 2 minus I. Now see, if you are adding any 2 complex number या फिर subtracting any 2 complex number, then how will this process undergo? तो कैसे ही प्रोसेस जाएगा? See बेटा, we just have to add the real with real and imaginary with imaginary. ऐसा नहीं कि रियल इमेजनरी में ऐड होगा. सो रियल पार्ट 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 + 1 दैट इज 3, एंड यहाँ इमेजनरी पार्ट I है, यहाँ माइनस है, तो I माइनस I करेंगे तो ये आ जाएगा 0. सो इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से 3 + 0 टाइम I. नाउ सी, दिस इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर.
ठीक है, वही चीज मैं कह रहा हूं कि इफ यू आर एडिंग एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन द रिजल्टेंट will also be a complex number and this property is known to be a closure property. Okay, now the second one is closure commutative property. Commutative property, ठीक है. What is commutative property? If you are having any two complex numbers z1 and z2, then if z1 plus z2 is equal to z2 plus z1, अगर आपका z1 प्लस z2 क्या हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए, इक्वल हो जाए किसके, z2 प्लस z1 के, देन दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी कि आपका जो एडिशन के केस में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है. और ये चीज होती है, ठीक है ना. इफ यू आर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर देन देयर एडिशन देयर रिजल्टेंट द रिजल्टेंट ऑफ देयर एडिशन इज विल बी द सेम. अगर हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर को, सीक्वेंस को आगे पीछे करके ऐड करें तो उनका जो रिजल्टेंट है इट डज नॉट अफेक्टेड. जैसे रियल नंबर के केस में होता है ना, रियल नंबर के 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, सॉरी नेचुरल नंबर के केस में 1 प्लस 2 2 प्लस 1, ऑर्डर आगे पीछे किया हमने बट द रिजल्टेंट इज नॉट अफेक्टेड, रिजल्ट तब भी 3 ही आएगा. तो ठीक वैसे यहाँ पे भी है, इफ यू आर एडिंग एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, ठीक है, इन डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पे हमने z1 प्लस z2 किया, यहाँ z2 प्लस z1 कर दिया, तो इसका कोई इफेक्ट इनके रिजल्ट पे नहीं पड़ेगा, रिजल्ट दोनों ओर सेम ही आएगा. एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन टू बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ थर्ड इज एसोसिएटिव. What does associative property state? If you are having any three complex number z1, z2 and z3, then if z1 plus within bracket z2 plus z3 it is equivalent to within bracket z1 plus z2 plus z3, then such property is called associative property. अगर ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है तो हम बोलेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं. और ऐसा बेटा होता है स्टूडेंट, ऐसा होता ही है. ठीक है, आ रही बात समझ में. सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, 3 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेके. चलिए कर ही लेते हैं इसको. सी आई एम गोइंग टू प्रूव दिस वन. लेट z1 इज इक्वल टू 0 प्लस आई, z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई and z3 is equal to 2 plus 3i. Now apply this one. Left hand side is z1 plus z2 plus z3. Okay. Now see z1 is 0 plus i, ठीक है, प्लस z2 plus z3 कितना है, ठीक है, z2 plus z3. अब यहाँ ब्रैकेट मत लगाना, ठीक है ना. z2 plus z3, z2 is 1 plus i, 1 plus i plus z3 is 2 plus 3i. ओके, नाउ सी 0 प्लस आई, ठीक है, ये बाहर से है, प्लस अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 दैट इज 3, आयोटा विल बी एडेड विथ आयोटा एंड रियल पार्ट विल बी एडेड विथ रियल पार्ट. तो 1 प्लस 2 दैट इज 3 प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा दैट इज 4 टाइम आयोटा. नाउ 0 प्लस 3 दैट इज 3, आई प्लस 4i दैट इज 5i. सो दिस इज द रिजल्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. नाउ फ्रॉम राइट हैंड साइड विच इज z1 plus z2 within bracket plus z3. So now see z1 is 0 plus I plus z2 is 1 plus I and outside the bracket is z3 which is 2 plus 3i. Okay, so now see 0 plus 1 that is 1, I plus I that is 2i, okay, plus 2 plus 3i. So again real will be added with real and complex will be imaginary will be added with imaginary part. So 1 plus 2 that is 3 plus 2i plus 3i that is 5i. So you can easily check the both left and right hand side gives you the same result, 3 plus 5i, 3 plus 5i. That's why I am telling you the associative property in case of complex number, in case of operation addition is get satisfied. Okay, pause the video and take the screenshot if you want. Now the next is existence of identity element. Okay, existence of identity element. So in case of complex number, ठीक है, if z is any complex number, है ना, z is any complex number, ठीक है, then 0 plus i0 0 plus i0
will be द एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। एडिशन के केस में हम बात कर रहे हैं, तो ये 0 प्लस आई जीरो क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो और आपको कहा जाए फाइंड द आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एक्चुअली एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की जगह यहां पे कर लीजिए एडिटिव। ठीक है, एडिशन के केस में बात हो रही है, सो एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एक्चुअली एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब समझिए, यहाँ पे सिर्फ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इफ़ यू आर हैविंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है, तो मैं उसमें कितना ऐड करूंगा कि मुझे वापस वही चीज़ मिले। ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन व्हाट अमाउंट वी शुड ऐड इट टू दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर सो दैट वी विल गेट द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। वही जो अमाउंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। समझ रहे हो बात को। तो बेटा यार 0 अगर ऐड करें हम जेड में तभी तो हमें जेड मिलेगा, बात समझ रहे हैं ना आप। तो 0, अब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम 0 तो लिख नहीं सकते इसको, तो 0 प्लस आई जीरो, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे डिनोट करेंगे। सो 0 प्लस आई जीरो विल बी द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ईच एंड एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल ले लीजिए कुछ एक, लेट जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, है ना, और हमने कहा कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स कितना हम इसमें ऐड करें कि वापस हमें यही चीज़ मिलनी चाहिए, है ना, तभी तो आइडेंटिटी बनेगा। तो देख लीजिए 2 प्लस 3i प्लस 0 प्लस आई जीरो, ऐड करो भाई, 2 प्लस 0 2 प्लस 3i प्लस 0i, मतलब 3i में 0 टाइम i ऐड करें तो वापस 3i ही मिलेगा आपको। सो दैट्स वाई 0 प्लस आई जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ईच एंड एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ दिस नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट देख लिया हमने। अब हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट का मतलब ये है कि इफ यू आर हैविंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड देन व्हाट अमाउंट वी शुड एडेड टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दैट वी गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ रहे बात को, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कितना ऐड करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, वो जो एलिमेंट होगा वही क्या बनेगा, एडिटिव इनवर्स बनेगा। क्या बनेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स कर लो यहाँ पे भी। ठीक है, एडिटिव। मैं क्यों यहाँ पे एडिटिव लगा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जब हम मल्टीप्लिकेशन के केस में सारी प्रोसेस को पढ़ेंगे तो वहां पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये वर्ड यूज होगा। ठीक है, सो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ प्लस का चल रहा है, एडिशन का चल रहा है, वहां ऑपरेशन मल्टीप्लाई का चलेगा। सो डिफरेंस तो आना ही है ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स एलिमेंट मीन्स व्हाट अमाउंट, ऐसा कौन सा अमाउंट होगा, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको अगर मैं जेड में ऐड करूं तो मुझे आइडेंटिटी मिले। आइडेंटिटी कितनी है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की, 0 प्लस आई जीरो, अभी बात की थी हमने। तो जेड में कितना जोड़ें कि 0 प्लस आई जीरो मिले, अल्टीमेटली माइनस ऑफ जेड, ऑफकोर्स माइनस ऑफ जेड। जेड में अगर माइनस जेड में ऐड करूंगा तभी तो मुझे 0 मिलेगा ना। तो इसलिए हो क्या रहा है, माइनस जेड विल बी दी एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। क्या निकल के आया यहां से कि माइनस जेड, अगर जेड को ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इफ यू आर हैविंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, तो माइनस जेड विल बी इट्स एडिटिव इनवर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, सपोज करिए 8 प्लस 3i। ठीक है, रैंडमली हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। नाउ वी वांट टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी मैंने बताया माइनस ऑफ जेड, माइनस लगा दो इसके आगे बस, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहना है। ऐड करो इन दोनों को, ऐड कर लो भाई, 8 प्लस 3i प्लस माइनस ऑफ 8 प्लस 3i, तो क्या हो जाएगा भाई 8 प्लस 3i, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 8, ठीक, और माइनस का 3i, यही तो होगा। बात समझ में आ रही है आपको, -8 माइनस 3i, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, अल्टीमेटली यू विल गेट 0 प्लस आई जीरो, एंड विच इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस तरीके से प्रोसेस है। पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ये प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। नाउ
हाउ टू फाइंड द डिफरेंस, है ना, द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर. How to find the difference of any two complex number? Dear student, if you are having two complex numbers Z1 and Z2 and we want to find the difference between them, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखेंगे. Z1 प्लस माइनस ऑफ Z2, इस तरीके से. अगर हमें डिफरेंस चाहिए तो कैसे करेंगे, Z1 में ऐड कर दो कितना, माइनस ऑफ Z2, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या, Z1 प्लस माइनस माइनस Z2, इस तरीके से. एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक है. सपोज Z1 इज इक्वल टू है 2 प्लस 3i, ठीक है, और Z2 इज इक्वल टू है मेरे पास 1 प्लस आई. नाउ आई वांट टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ देम. आई वांट टू फाइंड Z1 माइनस Z2 कितना होगा, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, Z1 यानी 2 प्लस 3i, ठीक है, प्लस क्या बताया था मैंने, माइनस ऑफ Z1, इसका नेगेटिव. तो यार अगर Z2 आपके पास 1 प्लस आई है तो माइनस ऑफ Z2 फाइंड करने के लिए आपने करना क्या है, बस माइनस का मल्टीप्लाई तो कर लेना है. तो माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये -1, यहाँ करेंगे तो माइनस आई, ठीक है, मीन्स ये अमाउंट इसमें ऐड कर दो, -1 माइनस आई, ठीक है. तो 2 प्लस 3i, ओके, प्लस माइनस -1 प्लस माइनस माइनस आई. नाउ सी 2 minus 1 that is 1, 3i minus i that is 2i. So it will be quite easy for you, ठीक है, if you are finding the difference of any two complex number, that you have to find the negative of any one complex number. किसी एक का negative of complex number find कर लीजिए, negative, बस उसको दूसरे में ऐड कर दीजिए, that will be equivalent to the difference of both the complex number. Okay, now we'll discuss about the multiplication of complex number. ठीक है ना, multiplication. मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी हम करते हैं उसके केस में बहुत सारी, है ना, जैसे हमने अभी एडिशन ऑपरेशन के केस में हम बात की थी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की, ठीक वैसे हम मल्टीप्लिकेशन के केस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे. तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको कह दूं, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन द कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी. Second, closure property means Z1 into Z2. If Z1 and Z2 are any two complex number, then their product also will be a complex number. Second, closure के बाद आ गया commutative. Commutative means if you are having any two complex number Z1 and Z2, then Z1 Z2 must be equal to Z2 Z1. ठीक है. Third, associative. एसोसिएटिव के लिए 3 नंबर्स चाहिए होते हैं, 3 फिगर्स चाहिए होते हैं. तो 3 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई Z1 Z2 Z3, देन व्हाट डज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट, इट स्टेट दैट Z1 इंटू विद इन ब्रैकेट Z2 इंटू Z3 मस्ट बी इक्वल टू विद इन ब्रैकेट Z1 Z2 मल्टीप्लाई विद Z3. बिल्कुल वही जैसे एडिशन था, बस यहाँ उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन चल गया, बाकी सेम चीज़ें हैं. फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मीन्स अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों Z है तो मैं इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, कितने का मल्टीप्लाई करूं कि मुझे सेम चीज़ मिले, कि मुझे यही चीज़ मिले. तो बेटा यार वो तो 1 का ही होगा ना, अगर 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये सेम चीज़ मिलेगी. इसका मतलब 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना. 1 is the multiplicative identity, sorry, 1 is the multiplicative identity for the complex number. अब यार पढ़ रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर तो 1 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जाहिर सी बात है 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 प्लस 0i. 1 विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक 1 प्लस 0i, ठीक है, सिंपल सी बात है. नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है. तो मल्टीप्लिकेशन के केस में इनवर्स का काम कौन करेगा, ये कह रहा है. सो इफ यू आर हैविंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z, देन व्हाट अमाउंट वी शुड मल्टीप्लाई इट सो दैट वी विल गेट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्लियर. तो Z में कितने का मल्टीप्लाई करूंगा कि 1 मिले, ऑफकोर्स 1/Z है ना, तभी तो ये कैंसिल होकर 1 ही देगा ना मुझे. बात समझ में आ रही है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया कि
1 upon z will be the multiplicative inverse of z. If you are having any complex number z, then 1 upon z will be its multiplicative identity. I hope you are getting my point. इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं एग्जाम्पल लेके, अगर z आपके पास है x प्लस आई वाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 1 अपॉन z कर दो, सिंपल 1 अपॉन x प्लस आई वाई, ठीक है. इट शुड बी इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है. बाकी जब मैं ऑपरेशंस क्वेश्चंस करूंगा न्यूमेरिकल्स, then we'll discuss about all these things. Okay, pause the video and take the screenshot of it. Okay, now we'll discuss about distributive rule. So distributive rule का मतलब क्या है? If you are having any three complex number z1, z2 and z3, okay, and I am taking here two operations together. Two operations, one is plus, another is multiplication. So we are applying both operations simultaneously. Like that, first z1 into z2 plus z3 can be expressed as z1 z2 plus z1 z3, and the second one is z1 plus z2 multiply with z3 can be expressed as z1 z3 plus z2 z3. ओके, यहाँ पे सॉरी, हाँ यहाँ पे ये z1 z3 होगा, ठीक है. And this is called left hand distributive rule and this is called right hand distributive rule. Here what we are doing, we are operating multiplication over addition, and here we are operating addition over multiplication. So these two property in combined is called the distributive rule of complex number. Here we are operating two operations simultaneously, one is addition and another one is multiplication. Now we will discuss about the division, है ना, division of complex number. So बेटा, if we are having any two complex number z1 and z2, ठीक है, अगर ये कोई दो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो इनका डिवीजन जो होगा वो कैसा होगा भाई, z1 अपॉन z2, बट प्रोवाइडेड दैट z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये तो हर जगह ही कंडीशन है. इफ यू आर हैविंग एनी फ्रैक्शनल पार्ट, अगर कोई भी फ्रैक्शन हम देख रहे हैं, कोई भी रैशनल फिगर हम देख रहे हैं, तो ये तो क्लियर ही है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज इफ डिनोमिनेटर इज इक्विवेलेंट टू 0 देन द होल थिंग इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी की ओर को बढ़ जाएगा ना, वो तो मीनिंगलेस है फिर. तो डिवीजन अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर का करना है तो वो तो बिल्कुल ऐसी ही है, देखना ध्यान से. z1 अपॉन z2 कैन बी एक्सप्रेस प्रोवाइडेड दैट z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सो z1 अपॉन z2 कैन बी एक्सप्रेस एज z1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन z2. समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब क्या है कि एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा क्या है, दूसरा z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, दोनों का प्रोडक्ट है एक तरीके से, ठीक. So dear student, this is all from today's video lecture. In next video session we will discuss about iota, its property, and of course modulus and conjugate of a complex number. Till then, bye bye, take care and stay safe.